سب سے پہلے آپ کو اہم خبر یہ دیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کا تسلسل برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں پبلک گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف سے۔ جی ایاز، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ ایاز، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو کہیے گا 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے سبسڈی میں، مزید کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حالیہ جو صورتحال کے پیش نظر معاشی طور پر جو کمزور طبقہ ہے اس کو ریلیف کی فراہمی کے تسلسل کو قائم رکھنے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، جس میں موٹر سائیکل سواروں پبلک گڈ ٹرانسپورٹ کے لیے جو گزشتہ ماہ دی جانی سبسڈی ہے اس کو 1 ماہ کی مزید اس کا توسیع کا فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی سفری کرایہ اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں اضافے کو روکنے کی بھی ہدایت کی گئی اور عوامی ریلیف کے اقدامات کو مؤثر نگرانی بنائی جائے تاکہ اس کے ثمرات براہ راست مستحق افراد تک پہنچ سکے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مشکل حالات میں عام آدمی کے لیے اربوں روپے کے جو قومی ریلیف پیکج دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان حالات میں جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح بھی ہے اور کسی بھی صورت جو عام آدمی کو اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ خطے کی صورتحال میں جلد بہتری ہے تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی، اس میں قیمتوں میں کمی اور استحکام آ سکے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ایاز اس تفصیل کے لیے۔ اسی طرح اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رکھنے کا اعلان، کہا موٹر سائیکل مالکان سندھ حکومت کی سبسڈی کا مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل فیول سبسڈی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث فی موٹر سائیکل 2000 روپے سبسڈی دی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر مختصر اور طاقتور حملوں کی نئی لہر کا منصوبہ بنایا ہے۔ ان حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل ختم کرنا یا جنگ کے مکمل خاتمے سے پہلے ایران کو آخری فیصلہ کن ضرب لگانا ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع آج ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ بھی شیئر کر دیا۔ نقشے میں آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کا نام دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب۔ ٹرمپ کی پرانی ویڈیو شیئر کر دی جس میں ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہنے کو بڑی غلطی کہا تھا۔ عباس عراقچی نے کہا ٹرمپ آبنائے ہرمز کی درست اصطلاح خلیج فارس استعمال کرتے ہیں، تاہم ہرمز کو کسی اور نام سے پکارنا واقعی ایک سنگین غلطی ہے۔ Open it up. They have to open up the Strait of Trump. Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی اور میزائل پروگرام قومی اثاثہ ہے جن کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ امریکیوں کی جگہ صرف سمندر کی تہہ میں ہے۔ یوم خلیج فارس پر پیغام میں سپریم لیڈر نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ غیر ملکی لالچیوں کی آبنائے ہرمز پر رال ٹپکی ہو۔ 2 ماہ کی جارحیت میں امریکیوں کی شرمناک شکست سے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں نیا باب رقم ہوا ہے۔ خطے میں عدم استحکام کی وجہ سے خطے کے ملکوں میں امریکی فوجی اڈے ہیں۔ یہ کٹ پتلی ٹھکانے امریکیوں سے محبت کرنے والوں کو کیا دفاع کرتے ہوں گے، وہ تو خود کو ہی محفوظ نہیں رکھ پائے۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر غالباف کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے خطے کو امریکی اثر و رسوخ سے آزاد مستقبل دے گا۔ ہم نے آبنائے ہرمز سے یورپی نوآبادیاتی قوتوں کو نکالا۔ اس فتح کی یاد میں ہم یوم خلیج فارس مناتے ہیں۔ یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کایا کلاس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک کال میں کئی سوالات کے جوابات نہیں ملے، خاص طور پر اس تناظر میں جبکہ روس کھل کر ایران کی امریکہ کے خلاف جنگ کو سراہ رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ کے رویے میں تبدیلی کے بعد تہران سفارتکاری کا راستہ دوبارہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ خلیج میں عدم استحکام کی وجہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایرانی جہازوں کے خلاف امریکی قذافی کو روکنا اور مذمت کرنا ضروری ہے۔
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कुछ दीगर मामलात की बात करें और मौसम का जिक्र करें तो इस्लामाबाद में तेज़ बारिश और ठंडी हवाओं के साथ मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगे इस बारे में दुआ मिर्जा। जी, इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया और इस वक्त काले बादलों के डेरे हैं आसमान पर और मींह बरसना भी शुरू हो चुका है। यानी इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त यकसर तब्दील हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 घंटे तक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और अच्छी बात यह है कि इस बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। धूप की तपिश इस वक्त भूल चुके हैं लोग और चूंकि शाम का टाइम है, ऑफिस के बाद का टाइम है और लोग इंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जात 19 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहने का इम्कान है। अलबत्ता कल फिर सूरज अपनी आबोताब से चमकेगा और मौसम गर्म ही रहेगा। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूनिसेफ के वफ़द ने मुलाकात की है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत कौम के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान इंसदाद पोलियो को अव्वलीन तरजीह समझता है। पोलियो के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। सीसे के असरात के बाइस बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के मसाइल पैदा होते हैं। हुकूमत सीसे के असरात की रोकथाम के इक़दाम के लिए पुरआज़म है। अभी आपको ये बताएंगे, कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से $8,500 अमरीकी डॉलर डिजिटल करेंसी लूटने के वाक़े में 2 मुलज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मज़ीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या तफसील है आपके पास? मुलज़मान को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का मज़ीद क्या कहना है? जी मोर्शिद, ये 22 अप्रैल को वाक़या पेश आया था। जो शहरी मिताल जो है वो एयरपोर्ट जा रहा था और उसको एयरपोर्ट के करीब शाहर फैसल से एक गाड़ी में सवार अफराद ने उसे अगवा किया। उसको मुख्तलिफ सड़कों पे घुमाते रहे और उससे डिजिटल करेंसी 8,600 अमरीकी डॉलर, 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप उससे छीन लिया। उसके बाद फिर वाकई का मुकदमा एयरपोर्ट थाने में दर्ज किया गया। इस सिलसिले में बात हुई SSP आसिफ बलोच से, तो बताते हैं कि पुलिस ने इसके टेक्निकल डेटा, इसका डिजिटल जो है वो डेटा निकाला और उसके बाद कुछ लोग को ट्रेस आउट किया और उसके बाद फिर ये मुलजिमान यहाँ से वो बताते हैं कि इस्लामाबाद फरार हो गए थे और कल रात ही यहाँ पर ये वापस पहुंचे। इसके बाद इन 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमान का कहना है कि उनके गिरोह में मजीद कोई 6 से 7 मुलजिमान शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी अभी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त फर्ज आपको मुलजिमान से किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं हो सकी है, लेकिन मुलजिमान के दीगर साथियों को उन्होंने बता दिया जिसके लिए उम्र कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। वाक़या 22 अप्रैल को पेश आया था और इस शहरी से 8,500 अमरीकी डॉलर डिजिटल करेंसी लूट ली गई थी, जबकि इसके साथ साथ उसको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया था। जी, शुक्रिया आपका राहिल, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। नैब ने कार्रवाई करते हुए 6500 केनाल अराजी CDA के नाम मुंतकिल कर दी है। नैब ने हाउसिंग सोसाइटीज़ में अवामी सहूलियात के लिए मुख्तस 6500 केनाल से ज़ायद एमिनिटी और पब्लिक स्पेस अराजी CDA के नाम मुंतकिल कर दी है। अराजी पार्क्स तालीमी इदारों, सेहत मराकज़ और दीगर अवामी सहूलियात के लिए मुख्तस थे। ज़राए के मुताबिक अगले चंद हफ्तों में दीगर सोसाइटीज़ की तकरीबन 4500 कनाल ज़मीन मज़ीद CDA के नाम मुंतकिल की जाएगी। 2500 कनाल से ज़ायद अराजी की म्यूटेशंस भी ज़ेर गौर हैं जिन्हें जल्द मुकम्मल करने के लिए कार्रवाई जारी है। नैब के मुताबिक इक़दाम तवील अरसे से अल्तवा केसेस के हल और गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम के लिए किया गया, जिससे अवामी सहूलियात और रियासती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों अगवा ऑयल टैंकर के अमले में 10 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। मग़वियों के अहले खाना का मुतालबा है कि हुकूमत मग़वियों की रिहाई के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करे। में बहरी क़ज़ाक़ों के हाथों अगवा ऑयल टैंकर के अमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इनमें से 7 का ताल्लुक कराची से है, जिनके अहले खाना कराची प्रेस क्लब पहुंचे और मीडिया को अपनी परेशानी से आगाह किया। बताया कि अपने प्यारों से इनका राब्ता 21 अप्रैल के बाद से मुनक़ता है। अहले खाना ने शिकवा किया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म की पेशरफ से आगाह नहीं किया जा रहा। 21 तारीख को मेरी उनसे बात हो रही थी 4:25 पे, जब उन्होंने मुझे बताया कि जहाज़ पे पायरेट्स आ गए हैं और हाईजैक हो गया है जहाज़। वहाँ पर वो एक दिन पहले उनको मारने के लिए ले गए थे, वो इसलिए कि ताकि गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर पड़े। और खाने की बहुत किल्लत है, पानी बहुत ख़राब है वहाँ का। अगर कोई भी वहाँ बीमार होता है तो ये पता नहीं है कि उनका क्या हाल होगा। यरगमाल हुसैन यूसुफ के भांजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं बल्कि तमाम यरगमालियों की ज़िंदगी का मसला है। हुकूमत ने मुग़वियों की रिहाई के लिए ताहाल खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, सब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं।
मगर गवर्नमेंट की तरफ से रियासत पाकिस्तान का इन फैमिलीज से फ़िलहाल कोई डायरेक्ट रब्ता नहीं है, सिवाय इसके कि गवर्नर साहब ने इन फैमिलीज़ को बुला के तसल्ली दी थी। अहल खाना ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुतालबा किया कि यरग़मालियों की बाजियाबी के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी या कमीशन तश्कील दिया जाए और एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए जो ख़ानदानों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। अमरीकी सदर ट्रंप ने जर्मन चांसलर को मशवरा दिया है कि वो रूस यूक्रेन जंग कराने पर तवज्जो दे और ख़ास तौर पर अपने मुल्क जर्मनी में इमिग्रेशन और तवानाई के मसाइल पर तवज्जो दे। जर्मन चांसलर को ईरान की जौहरी खतरे जैसे मामलात में मुदाखलत कम करनी चाहिए, इससे जर्मनी समेत सारी दुनिया ज़्यादा महफूज बन रही है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक इम्तिहानात में कामयाबी की शरह सिर्फ 2.67% रही। इम्तिहान में 12,792 उम्मीदवार शरीक हुए, सिर्फ 355 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और यही वो ताकत है जो मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकती है। इसी सोच को हकीकत का रंग देने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मरियम नवाज की ये रिपोर्ट देखिए। तेजी से बदलती आलमी मईशत, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चैलेंजेस के दरमियान पाकिस्तान के नौजवान जरिए मुआश क्या अपनाएं। जहां एक तरफ रिवायती मुलाजमतों के मौके महदूद होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कारोबार और स्टार्टअप्स एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मुनक्किदा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के IT शोबे में कामयाब CEOs ने गुर सिखा दिए। A lot of hard work. Starting something is often not the discipline that's required to start it is not talked about enough. बहुत focus, बहुत discipline, बहुत time. I think जो दूसरी बात ये है honesty, integrity, transparency हर चीज़ में। और जो एक दूसरे side पे I was saying that we should talk about is also the idea. You have to have an idea that's unique or work in an industry where you are building something that's different from what already exists. पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी टेक्नोलॉजी इकोनॉमीज़ कैसे बन सकता है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो हम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जितने वर्ल्ड कैपिटल्स हैं उनमें पाकिस्तानी फोकस, पाकिस्तानी टेक फोकस्ड इवेंट्स भी कराते हैं और ऑब्वियसली प्रमोट भी करते हैं पाकिस्तानी फाउंडर्स को। माइको इस वक्त पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अराउंड, जिसमें ना सिर्फ ये कि स्ट्रीमिंग है बट उसकी ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन भी है हाइब्रिड मॉडल्स के अंदर। हमारी अभी जो सक्सेस है वो ज़्यादातर ड्रिवन है बाय लाइव स्पोर्ट्स। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, मौजूदा दौर में कामयाबी का दारोमदार सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि महारत, जिद्दत और मुस्तकिल मिजाजी पर है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो महदूद वसाइल के बावजूद छोटे पैमाने से कारोबार का आगाज करें और जदीद टेक्नोलॉजी, खास तौर पर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपनी तरक्की का जरिया बनाएं। कैमरामैन रिजवान अली शाह के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।